Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, measurements. We use many things in our daily life, but before using them, we also need to know their quantities. Knowing the quantity of a thing is called measurement. It is the basis of scientific knowledge and its expression. There are some basic quantities: mass, weight, length, capacity, volume, temperature and time. We also need to measure these quantities in our daily life. The present age is the age of science. Therefore, weight of daily consumables, length of cloth, a place and time are all measured in standard units. Look at the pictures given below. These show people measuring different types of things. अच्छा देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट उनको यूज़ करने से पहले हमें उनकी क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए. तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को हम बोलते हैं जानना, जिसे मेजरमेंट. तो ये साइंटिफिक नॉलेज और उसके एक्सप्रेशन का बेस है. तो कुछ बेसिक यूनिट्स हैं आपकी, जैसे मास यानी वेट, लेंथ, कैपेसिटी ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड टाइम. तो हम इन क्वांटिटीज़ को अपनी डेली लाइफ में मेजर करते हैं, है ना. अब जो प्रेजेंट एज है दैट इज़ द एज ऑफ साइंस. इसीलिए जो वेट है डेली कंज्यूमेबल का, चाहे क्लॉथ की लेंथ हो, चाहे प्लेस हो या टाइम, ये सारी मेजर की जाती है स्टैंडर्ड यूनिट्स में. जैसे आप इन पिक्चर्स में देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को मेजर कर रहे हैं. All these activities show that measurement has become an essential part of our life. We have standard units of measurement which have fixed values. Everyone uses the same units of measurement. The names of some standard units are used are as follows. अच्छा, ये जितनी भी जो activities हैं, ये क्या show कर रहे हैं कि measurement जो है हमारी एक life का एक important part है, right? तो किसी भी चीज़ को measure करने के लिए we have standard units of measurement जिनकी fixed values होती हैं. तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी standard units हैं. स्टैंडर्ड यूनिट्स, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, वेट को किलोग्राम में, वॉल्यूम को लीटर में, टेम्परेचर को डिग्री में एंड टाइम को सेकेंड्स में. देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज. मेजरमेंट ऑफ मास और वेट. We use a balance or a weighing machine to measure weight. In a common balance, the object to be weighed is put in one pan and balanced with weights in the other pan. In a weighing machine, the arrow moves on a scale and the reading is noted. Heavier weights are measured in kilograms. Smaller weights like those of gold, silver are measured in grams and milligrams. 1000 grams is equals to 1 kilogram and 1000 milligrams is equals to 1 gram. You can weight yourself on a weighing machine. Weights of food, grains, pulses, etc. are measured by different types of balances. Gold is measured by a very sensitive and accurate balance. देखिए, हम बैलेंस या वेइंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेट को मेजर करने के लिए. कॉमन बैलेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एक पैन पे, ठीक है, एंड दूसरे पैन में उसमें वेट्स को बैलेंस किया जाता है. वेइंग मशीन में जो एरोज हैं वो स्केल पे मूव करते हैं एंड देन रीडिंग को नोट किया जाता है. तो हेवियर वेट को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में, जबकि जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं उन्हें हम ग्राम्स या मिलीग्राम्स में यूज़ करते हैं, राइट. आप जैसे कि वेइंग मशीन में अपने आप को वे कर सकते हैं. वेट्स जो हैं फूड के या पल्सेस के, ये मेजर किए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस में. और कभी आप गोल्ड की शॉप में जाइए तो गोल्ड को मेजर किया जाता है, जो एक ना एक्यूरेट और बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस वो होता है. Measurement of length. We measure the length in meters. We may use a ruler scale, a meter rod or a measuring tape. A meter scale or rod has 100 equal divisions called centimeters. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeters. अच्छा, हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, है ना. हम रूलर स्केल का यूज़ करते हैं, मीटर रॉड का या मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं. मीटर स्केल या रॉड में 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं जिसे कहा जाता है सेंटीमीटर्स, और हर सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं जो आपके होते हैं मिलीमीटर्स. Therefore, 100 centimeters is equals to 1 meter and 10 millimeters is equals to 1 centimeter. We can measure a straight line with a ruler. देखिए, आप रूलर आप यूज़ भी करते हैं. स्ट्रेट लाइन को मेजर करना है तो आप रूलर का यूज़ करते हैं. द क्लोथ मर्चेंट मेजर्स क्लोथ बाय अ मीटर रोड. अब आप क्लोथ मर्चेंट के पास जाइए, वो क्लोथ को मेजर करेगा मीटर रॉड से. द टेलर यूजेस मेजरिंग टेप. लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. 1 kilometers is equals to 1000 meters. Measurement of capacity or volume. Look at the following pictures and say which jar holds more water. देखिए, jar A and jar B. आप
पता लगा सकते हैं कि कौन सा जार जो है वो ज़्यादा वाटर को होल्ड करेगा, है ना। वाटर इन जार ए कैन फिल 1 ग्लास whereas वाटर इन जार बी कैन फिल 2 ग्लासेस। अच्छा, जार ए जो है वो सिर्फ 1 ग्लास को फिल कर सकता है, जबकि जार बी 2 ग्लासेस को फिल कर सकता है। द जार दैट होल्ड्स मोर वाटर हैज़ मोर कैपेसिटी, द जार बी हैज़ मोर कैपेसिटी। तो जो जार आपका ज़्यादा पानी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि जार बी की कैपेसिटी ज़्यादा है। Capacity of a container is the amount of liquid it can hold. You must have seen your mother using cups to measure the amount of water to be added while cooking. A measuring glass also helps us to measure liquids. जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंटेनर की, वो अमाउंट होता है लिक्विड का, यानी कि वो कितना होल्ड कर सकता है। जैसे कि आपकी मम्मी यूज़ करती हैं कि खाना बनाते टाइम कितना पानी डालना है ना, वो कप से मेजर करती हैं। मेजरिंग ग्लास का यूज़ किया जाता है लिक्विड्स को मेजर करने के लिए। Liquid is a commonly used unit for measuring capacity. Smaller units are measured in millimeters. Liter is written as L and milliliters as ml. For measuring larger volumes, liters and kiloliters are used. 1000 milliliter is equals to 1 liter and 1000 liter is equals to 1 kiloliter. Special measuring jars are used to measure volume. These jars are marked in milliliters and liters. The liquid to be measured is poured into these jars and the volume is read from the mark. अच्छा, अब देखिए, जो आपके लीटर आपका ना कॉमनली यूज्ड यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। जो स्मॉलर कैपेसिटी होती है, यानी कि जो स्मॉलर यूनिट्स है वो मेजर की जाती है मिलीलीटर में, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका किलो लीटर, राइट। कुछ आपके स्पेशल मेजरिंग जार्स भी होते हैं जो कि वॉल्यूम को मेजर करते हैं। इनको मार्क किया जाता है इन जार्स में मिली लीटर्स एंड लीटर्स। फिर जो लिक्विड है जो मेजर किया जाता है उनको फिर जार्स में पोर किया जाता है, और फिर जो वॉल्यूम है उसको रीड किया जाता है मार्क से, राइट। जैसे कि आपके मेजरिंग वेसल्स होते हैं, ये आपका मेजरिंग जग है, इसमें देखिए बीकर है, टेस्ट ट्यूब्स है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड. Temperature is measured with the help of a thermometer. We measure the temperature in Celsius or centigrade degrees and Fahrenheit degrees. A room thermometer measures temperature in degree centigrade or degree Celsius. देखिए, जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस। हम इसे इस तरह से लिखते हैं, राइट। तो टेम्परेचर को हम नापते हैं या तो सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट डिग्रीज में। जो रूम थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है डिग्री सेंटीग्रेड में। A clinical thermometer measures a body temperature in degree Fahrenheit, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको इस तरह से लिखा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. व्हेन द क्लिनिकल थर्मोमीटर शोज अ हायर रीडिंग इट मीन्स दैट द पर्सन हैज़ फीवर. देखिए जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है बॉडी का ये इतना है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, रीडिंग ज़्यादा आती है, दैट मीन्स पर्सन को फीवर है. मेजरमेंट ऑफ टाइम. Time is measured with the help of a watch or a clock. The face or dial of a watch or clock is divided into 12 parts. Each part shows 1 hour and is further divided into 5 parts. In the watch, there are 60 parts in all which show minutes and seconds. A watch or clock has 3 hands, smaller hour hand, minute hand and second hand. 1 day is equals to 24 hours, 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. Hours and minutes glow in digits in an electronic watch. टाइम को देखिए मेजर करते हैं आप क्लॉक या फिर वॉच की हेल्प से. तो जो फेस है डायल होता है वॉच का या क्लॉक का, उसमें 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं. हर पार्ट आपको शो करता है 1 आवर और फर्दर डिवाइडेड होता है 5 पार्ट्स में. वॉच में क्या होता है 60 पार्ट्स होते हैं जो आपके मिनट्स एंड हैंड्स को शो करते हैं. 1 डे में आपको पता है 24 आवर्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स. एंड जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होती हैं उसमें आपके क्या आते हैं, डिजिट्स आते हैं इस तरह से, है ना, जो आपके आवर्स या मिनट्स को शो करते हैं. Forget me not. Measurements are important in science and in our daily life. Standard unit of a quantity is fixed, accurate and accepted by all. We measure weight in kilograms, length in meters, volume in liters, temperature in degrees Celsius and time in seconds. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करें.